Welcome to online sport program of FSEC Photo Rawalpindi. I am Miss Mavish Suhaib, biology lesson for class 10th. Dear students, today we are going to start with feedback mechanisms and disorders of nervous system. Objectives: after the completion of this lecture, students will be able to explain about types of feedback mechanism, disorders of nervous system like paralysis and epilepsy. Recap of the previous studies. Dear students, our body is very sensitive to hormone. It's important to control the amount of hormones which is present in blood. So how does body do that? Let's find out in today's lecture. What is the mechanism which regulate this system? What is this? It is a process known as feedback mechanism in which our body secrete their hormone and they get a message from body or from organ whether the hormone do their job or not. For make a lot of sense, let's take the example of pancreas and insulin. We already discussed about this in previous lecture, but just to make a recap, we will discuss it again. When the blood sugar rises to a point, our pancreas will reduce it because it can damage to blood vessels, and as a result, blood may not be reachable to all the cells, and oxygen will also may not be reachable to all the cells, and cell could die. So it's very dangerous to our body. For its normal function, let's see the example. When the blood sugar level rises into our blood, our pancreas send insulin to start more blood sugar absorbent in cells. As a result, blood sugar level will become low, decreases. This is done by a mechanism known as feedback mechanism. Now let's see what it is. Now what is feedback mechanism? It means the regulation of process by the output of the same process. हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस एट अ टाइम टेक प्लेस होते हैं और उनका आउटपुट उनको रेगुलेट कर रहा होता है. तो हमारी बॉडी में इनकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होती है. कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें उसका आउटपुट ये डिसाइड करे कि आइदर हमने उस प्रोसेस को स्टॉप करना है या उस प्रोसेस को डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करना है, उस प्रोसेस को हम फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं. टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज़म्स. देयर आर टू मेन टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक. इन पॉजिटिव फीडबैक, the changes resulting from a process increase the rate of this process. Rate of a process will increased. Example: suckling action of an infant stimulates the production of a hormone oxytocin in mother. More suckling leads to more hormone which in turn to more milk productions. जैसे ही इन्फेंट अपनी मदर से फीडिंग लेंगे, सकलिंग करेंगे, तो हमारे पास हार्मोन ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर जाएगी. जितनी ज़्यादा इसकी सकलिंग होगी उतना ज़्यादा ये हार्मोन मोर अमाउंट में प्रोड्यूस होगा. और दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स. इन दिस टाइप आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस डिक्रीजेस. जब आउटपुट प्रोसेस का देखा जाता है तो उसका आउटपुट ये डिसाइड करता है कि आप इस प्रोसेस को या तो डिक्रीज़ कर जाना चाहिए और इनहिबिट द प्रोसेस, या तो इस प्रोसेस को स्टॉप कर लेना चाहिए. एग्जांपल हमारे पास ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन है. लेट्स सी हाउ इट इज़ कंट्रोल्ड इन आवर ब्लड. लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म थ्रू दिस डायग्राम. Our blood sugar level will decided whether pancreas will produce insulin or either it stop insulin. जब हमारा शुगर लेवल हाई हो जाएगा ब्लड के अंदर तो हमारा पेंक्रियाज जो है वो स्टिमुलेट करेगा इंसुलिन को अपटेक ऑफ शुगर फ्रॉम ब्लड सेल्स. तो ज़्यादा से ज़्यादा शुगर जो है वो ब्लड सेल से रीअब्जॉर्ब होगी और इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज लिवर में स्टोर हो जाएगी. एज अ रिज़ल्ट हमारा शुगर लेवल ब्लड के अंदर
लो हो जाएगा। इन सेकंड केस जब हमारे पास लो ब्लड शुगर होगा तो उस वक्त पेंक्रियाज ये डिसाइड करेगा कि आप इंसुलिन की प्रोडक्शन को स्टॉप करना है। Let's see what are the disorders of nervous system. Disorders mean abnormalities, diseases और नर्वस सिस्टम जब इम्पेयरमेंट हो जाएगी, वो प्रॉपर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, तो हमारे पास कौन कौन से ड्रॉबैक्स आएंगे। देर आर टू मेन टाइप्स। वन इज़ वेस्कुलर डिसऑर्डर्स, जिसमें हमारे पास जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, उनमें कोई ना कोई आप कह सकते हो कि डिसफंक्शनिंग हो जाएगी। एंड सेकेंड इज़ फंक्शनल डिसऑर्डर। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज। वेस्कुलर डिसऑर्डर, इट इज़ ड्यू टू एनी डिस्टर्बेंस इन द ब्लड सप्लाई टू नर्वस सिस्टम, यानी वो वेजल्स जो कि नर्वस सिस्टम को ब्लड लेके जा रही हैं, उनकी वजह से ये डिसऑर्डर हो जाएगा। इसकी एग्जांपल हमारे पास है पैरालिसिस। पैरालिसिस में क्या होता है कि हमारे पास कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन बाय वन और मोर मसल ग्रुप्स इज कॉल्ड पैरालिसिस। Paralysis can be throughout the body of patients or in a lower extremities। हमारे पास जो लिम्स होती हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि फॉलेज के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी राइट साइड का जो आर्म होती है और लेग होती है, ठीक है, वो आप कह सकते हो कि डिसेबल हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि ओवरऑल बॉडी पैरालिसिस में जाएगी या उसके जो लिम्स हैं उनमें पैरालिसिस हुआ है। लेट्स सी द कॉजेज ऑफ पैरालिसिस। इट इज़ ड्यू टू द डैमेज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के डैमेज होने से, ड्यू टू स्ट्रोक। स्ट्रोक मीन होता है टू बस्ट कर जाना, ठीक है। हमारे पास जब ब्लड वेजल्स किसी वजह से बस्ट कर जाएंगी तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी डैमेज हो जाएगा। सेकेंड केस में ब्लड क्लॉटिंग इन ब्लड वेजल्स, अगर किसी भी जगह ब्लड की वेजल्स में क्लॉट बन चुका है तो वो ब्लड प्रॉपर फिर फर्दर उस ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से पेशेंट्स में पैरालिसिस हो जाती है। इस डायग्राम में आप लिम्स की पैरालिसिस को देख रहे हैं। पेशेंट्स के अंदर ऐसे जब पैरालिसिस होती है तो उनकी लिम्स जो होती हैं वो डिसेबल हो जाती हैं। एंड इन सेकेंड डायग्राम आप एक यहाँ पर एक चिल्ड्रन को फोकस कर रही हो जो कि पोलियो वायरस का पेशेंट है। तो पोलियो वायरस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर सप्लाई ऑफ ब्लड लिम्स की अंदर नहीं होती है और बच्चों के लिम्स जो हैं वो डिसेबल हो जाते हैं। फंक्शनल डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम, इट इज़ ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन नर्व इम्पल्स जनरेशन एंड ट्रांसमिशन। हमारे पास जब नर्व इम्पल्स की जो जनरेशन, यानी कि जो नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस हो रही होती है या जो कि मैसेज को लेके जा रही होती है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है, एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होना शुरू हो जाती हैं, तो इस कंडीशन को हम फंक्शनल डिसऑर्डर कहते हैं। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं एपिलेप्सी। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्स ब्रेन में प्रोड्यूस होता है। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होना शुरू हो जाता है और इस कंडीशन को हम सीजर्स ऑफ एपिलेप्सी कहते हैं। सीजर्स ऑफ एपिलेप्सी एक एबनॉर्मल स्टेट है जिसमें एक जो पेशेंट होता है उसकी ब्रेन मार्क बाय कन्वर्जन्स मीन वो इनवॉलेंट्री एक्शन में चला जाता है, वो इरेगुलर फॉर्म में चला जाता है, उसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करते और ये एक टेम्प्ररी फॉर्म है। जब तक ये सस्टेन रहेगी उस वक्त तक इलेक्ट्रिकल जो आपके पास नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं वो एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस होंगी और ये थोड़े टाइम के लिए होता है जिसमें पेशेंट अपना जो है वो अवेयरनेस लॉस कर देता है, वो एक एबनॉर्मल स्टेट में चला जाता है, वो कॉन्शियसनेस लॉस कर देता है और जब इस कंडीशन को वो कंट्रोल कर लेता है तो उसकी बॉडी दोबारा जो है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। लेट्स सी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एपिलेप्सी। इट इज़ जेनेटिक और डेवलपमेंटल कॉजेज। जेनेटिक मीन ये बाय बर्थ भी हो सकता है, जीन्स में और इनहेरिटेंसली भी ट्रांसफ़र होता है। इसके अलावा जो लोग ओवर देन 40 होते हैं, ठीक है, जिनकी एज 40 साल से ज़्यादा होता है, अगर उनके अंदर ब्रेन ट्यूमर्स हैं, ठीक है, ट्यूमर जब हो जाता है ब्रेन में यानी कोई भी क्लॉट हो जाता है तो ब्रेन क्लॉट या ट्यूमर्स की वजह से भी ये हो सकता है।
इसके अलावा अगर किसी का एक्सीडेंटली कोई इंजरी हुई है, हेड ट्रॉमा हुआ है, तो उस वजह से भी ये एपिलेप्सी हो सकती है। व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट और क्योर? इज़ देयर एनी ट्रीटमेंट? नो। एपिलेप्सी का अभी तक कोई मेडिकली आप कह सकते हो कि ट्रीटमेंट नहीं हो सका, लेकिन पेशेंट ऑफ एपिलेप्सी हैव टू टेक मेडिसिन डेली, और इन मेडिसिन को हम एंटी कन्वल्जेंट और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कहते हैं। तो डेली बेसिस पे वो इस मेडिसिन को लेके इस पर ओवरकम कर सकते हैं। इसके अलावा नॉलेज ऑफ नर्वस सिस्टम हैज़ हेल्प मैन। हमारे पास हमने साइंस की तरक्की कर ली है, उसके थ्रू हम आप कह सकते हो कि हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करके उसमें जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके, उनको लोकेट करके। Dear students, today we have discussed about feedback mechanism and types of feedback mechanism. Positive feedback mechanism, in which we have discussed about the hormones, example of hormones oxytocin. And in negative feedback mechanism we have discussed about pancreas, function of pancreas, when pancreas will produce insulin in more amount, and when it will stop, it will inhibit the process of insulin. Secondly, we have discussed about the disorders of nervous systems, जिसमें हमने nervous disorders में हमने vascular disorders को डिस्कस किया, उसकी एग्जाम्पल थी हमारे पास पैरालिसिस, and then functional disorders in which we have studied about epilepsy. Success criteria: to remember the types of feedback mechanisms and to remember the paralysis and epilepsy. Written work regarding to this topic is understanding the concept, exercise, describe negative feedback with reference to insulin and glucagon. Question number 2, what are the symptoms and treatment of paralysis and epilepsy?